الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کا کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے الیکشن 15 جنوری کو ہی کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں کوئی بھی بلدیاتی انتخاب کرانا نہیں چاہتی۔ سجاد کاظمی کی رپورٹ۔ الیکشن کمیشن کی ہنگامی بیٹھک چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت لگی۔ اجلاس میں سندھ حکومت کی درخواست اور نوٹیفیکیشنز پر غور کیا گیا۔ سندھ حکومت نے کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دادو ضلع کی 2 تحصیلوں خیرپوناتھن اور مہر میں 15 جنوری 2023 کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سندھ حکومت کے اقدام پر برہمی کا اظہار اور صوبائی حکومت کے خلاف سخت کارروائی پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں کوئی بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی۔ اسلام آباد بلدیاتی قانون میں ترمیم کا سارا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈالا گیا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ 2 دن پہلے عین وقت پر سندھ حکومت نے ایسا اقدام کیا۔ الیکشن کمیشن نے اعلامیے میں کہا کہ کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ جلد ایک آرڈر جاری کریں گے۔ وزارت داخلہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کی تعیناتی کو یقینی بنائے۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر، ممبران، اسپیشل سیکرٹری، ڈی جی لا اور ڈی جی لوکل گورنمنٹ الیکشن کمیشن سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ نوٹیفیکیشن جاری کرنے یا واپس کرنے کا اختیار سندھ حکومت کا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ابہام ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ آیا تو معاملے کو دیکھیں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سندھ حکومت نے قانونی ٹیم کا اجلاس فوری طلب کر لیا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات، صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے صاف نہ، سندھ حکومت اپنے موقف پر قائم۔ کراچی ڈویژن اور ضلع حیدرآباد کی بلدیاتی حلقہ بندیاں منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نے 2 ٹوک موقف اپنایا کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے یا واپس کرنے کا اختیار سندھ حکومت کا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ابہام ہے۔ تحریری فیصلہ آیا تو معاملے کو دیکھیں گے۔ ایم کیو ایم کے تحفظات دیکھ کر سندھ حکومت نے اختیار استعمال کیا۔ بلدیاتی الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز معذرت کر چکی ہیں۔ الیکشن میں فوج اور رینجرز کی تعیناتی وفاق کا اختیار ہے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے بلدیاتی حلقہ بندیاں منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں دسمبر 2021 میں حکم نامے کے ذریعے بلدیاتی حلقہ بندیاں کی گئی تھیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات نے کابینہ کی منظوری کے بعد منسوخی کا حکم نامہ جاری کیا۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کی حلقہ بندی کے گزشتہ حکم نامے منسوخ کرنے کے فیصلے سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی الیکشن کروانے کے فیصلے کے بعد قانونی ٹیم کا اجلاس طلب کر لیا۔ چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری بلدیات سے بھی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے کس قانون کے تحت صوبائی حکومت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، قانونی ٹیم آگاہ کرے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ انتخابات سے فرار کی وجہ عمران خان کا خوف ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی راہ کے ایجنٹ ہیں۔ علی زیدی کا کہنا ہے کہ کل رات کے اندھیرے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تماشا لگا، کل مجبور قومی موومنٹ اکٹھا ہوئی۔ تحریک انصاف آج ایک سیاسی حقیقت بن چکی ہے۔ ہم بہت بڑی طاقت ہیں، سیاسی طاقت، اللہ کی مدد اور عوام کی مدد سے، اور ہم بالکل پکے تھے کہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ ساری سازشوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا میئر آپ کے سامنے اسی ٹیبل پر بیٹھ کے یہاں سے ہم اناؤنس کرتے۔ تو یہ جو مجبور قومی موومنٹ کا اکٹھا ہونا تھا، یہ جو اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو صاف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نے کبھی کسی سوسائٹی کو، کسی ملک کو کوئی آگے نہیں بڑھا۔ یہ ہمیشہ عوام کا مینڈیٹ اور عوام کی رائے میں ہوتا ہے۔ بات جو کل رات کو پھر آج بھی زرداری بیٹھا ان کی وجہ سے بیٹھا ہے، اور یہ آگے جو ٹھیکہ دکھا رہے ہیں کہ جو ہم بڑے مہاجر کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم الیکشن رکوا دیں گے شارع فیصل پہ۔ میں نے تو کل بھی کہا تھا تم شارع فیصل پہ الیکشن روکنے کے لیے بیٹھ جاؤ فارغ ستار، ہمارے ووٹر آ کے الیکشن کروا لیں گے۔ جماعت اسلامی کراچی نے الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا اعلان منسوخ کر دیا۔ امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد پر شب خون مارا ہے، ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے ہم شریف کیا ہوئے، پورا شہر بدمعاش ہو گیا، آ جاؤ اور بدمعاشی کر کے دکھاؤ۔ ابھی تو جمع ہوئے ہیں تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم کیا شریف ہوئے کہ بہت سے بدمعاش ہو گئے، آ جاؤ اور بدمعاشی کر کے دکھاؤ۔
हम मौजूद हैं, देखते हैं तुम कितनी बदमाशी करते हो। तुम जिन बुनियादों के ऊपर खड़े हुए थे, अब आवाम ने तुम्हें टोटली मुस्तरद कर दिया है। अब तुम्हारा ये कोई मंजन नहीं चलेगा। अब कोई तुम लोगों से नहीं कह सकोगे कि हम कराची के बड़े मुहाफिज हैं, तुम सिर्फ अपने लिए डील करते हो। जरा एक एक आदमी के हिसाब तो देखो, तुम थे क्या, और इस पार्टी के आने के बाद और इस मैंडेट को बेचने के नतीजे में तुम कहां कहां पहुंच गए। मर्दमशुमारी में कराची की गिनती आधी कर दी। तुम शरीके जुर्म थे इस छुरे को घोंपने में, जो कराची के लोगों की पीठ पर घोंपा गया। तुम कराची की बात करते हो, कराची के लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं और तुम खौफजदा हो। तुम 3 मिल जाओ या 10 मिल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। MQM पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मरकजी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नई हल्का बंदियां होने तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। मेयर इन लोगों का क्यों ना हो जिनकी आबादी ज्यादा है। MQM पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मरकजी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नई हल्का बंदियां होने तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। मेयर इन लोगों का क्यों ना हो जिनकी आबादी ज्यादा है। हुकूमत के बाद MQM पाकिस्तान भी मैदान में आ गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया। राब्ता कमेटी के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू में फरोग नसीम बोले, जहां MQM का वोट बैंक था, उन यूसेज में ज्यादा वोटर्स रख दिए गए। हमारा जो वोटर है उसको डाउन साइज कर दिया 3 टाइम्स, यानी हमारा वोट 1 और दूसरा वोट 3 के बराबर। तो इतनी बड़ी जो धांधली हुई तो MQM ने उसको चैलेंज किया। फैसल ज़ब्ज़वारी का कहना था कि कराची की आबादी को दुरुस्त गिना जाए। 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं है, जिन हल्का बंदियों में नजर आ रहा है कि नाज़ाबाद की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम के बावजूद नशिस्तें कम रख दें, और दीगर इलाकों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज्यादा रखें, वो कैसे शफाफ हो सकते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस न तौहीन अदालत है न तौहीन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने आज सिंध के वजीर आला और काबीना का फैसला एक तरफ उठाकर रख दिया। इलेक्शन कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट से भी मोतबिर हो गया। तो हमें ये नहीं, हम अगर आज बात कर रहे हैं तो ना ये तौहीन अदालत है ना तौहीन सुप्रीम कोर्ट। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना है कि उनका ये अमल क्या तौहीन अदालत के जुमरे में तो नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें देखना है ये। और दूसरा, जब फरोज भाई ने कहा कि फरीक को सुना नहीं गया, तो MQM को तो नहीं बुलाया गया, उन्हें तो नहीं सुना गया, लेकिन सूबाई हुकूमत को भी नहीं सुना गया, सूबाई हुकूमत को बुलाया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा, जब सिंध हुकूमत एतराफ कर रही है कि हल्का बंदियों में कोई गलती हुई, तो इलेक्शन कमीशन का अमल तौहीन अदालत तो नहीं। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की बारी। PTI ने KP असेंबली तोड़ने की समरी तैयार कर ली। तर्जुमान PTI फवाद चौधरी कहते हैं, पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई है। गवर्नर को चाहिए वो मजीद इंतजार किए बगैर समरी पर दस्तखत करें। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की एडवाइस भेजी जाएगी। जो पंजाब असेंबली की तहलील का फैसला किया था, उसकी समरी जो है वो रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो गवर्नर हाउस में मौसूल हो गई थी। हमारी तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मज़ीद 24 घंटे का इंतज़ार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो, तो उसके फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा।
गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने समरी कल रात मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं 2 रोज में इस पर फैसला करना है। असेंबली को वक्त से पहले तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल है। देखना है कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 रोज में इलेक्शन कराने होंगे जिसमें रमजान भी होगा। मुझे सब चीजें देखकर फैसला करना है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन और हुकूमत ने 3 दिन में निगरान सेटअप का फैसला करना है। ये भी देखना है कि 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज के अंदर कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो हैं वो रमज़ान मुबारक में फॉल कर रहे हैं और रमज़ान मुबारक के अंदर जो तमाम लोगों की अक्सरियत की जो रूटीन है वो बहुत डिफरेंट होती है इलेक्शन के लिए, और उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। इन सब ट्रेड ऑफ्स को, उन चीज़ों को देख के फैसला करना है। स्पीकर सीएम को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहना है कि वो आपस में पहले मिल के उसके लिए जो 3 दिन का वक्त है उसमें दें। अगर वो ना कर सके तो फिर अगले मराहिल हैं, और इसीलिए एक निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीज़ें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा और आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। पंजाब असेंबली की तहलील के बाद इंतखाबात की तैयारियों की बाज़गश्त। कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को इलेक्शन की तैयारियों का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी हैं। इमरान खान ने तमाम अरकान असेंबली और टिकट होल्डर को हलकों में मुहिम शुरू करने और सीनियर रहनुमाओं को किसान, यूथ, खवातीन और वकला विंग को मुतारिक करने की हिदायत जारी की हैं। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली की तहलील और निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के मामले पर PTI चेयरमैन इमरान खान ने सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के नामों के लिए ख़त लिखने की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए दायर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ आयद किया था कि दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत करते हुए एतराज़ को बहाल रखा और दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पंजाब असेंबली में अरकान की अक्सरियत असेंबली की तहलील की मुखालिफ है। अक्सरियत असेंबली की तहलील नहीं चाहती तो वज़ीर आला असेंबली नहीं तोड़ सकते। इमरान खान ने किसी आइनी इख्तियार के बगैर असेंबली तोड़ने की हिदायत दी। परवेज़ इलाही ने इमरान खान की हिदायत पर असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को भिजवाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने के मामले पर KPK की पार्टी क़यादत का इजलास तलब कर लिया है। हंगामी इजलास आज इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क पर होगा। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद अहमद खान काबीना अरकान के साथ खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप भी इमरान खान से मुलाकात करेगी। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील के रोड मैप पर बात होगी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि KP असेंबली भी हफ्ते तक तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा KP असेंबली इस वक्त तहलील हो जाएगी जब पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वजीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, सिर्फ भड़के मार सकता है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्विटर पर कहना था कि इमरान खान ने PDM को 4 इशाने चित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील होगी, सिंध असेंबली से भी निकलेंगे, इसके बाद कौमी असेंबली की बारी आएगी। साबिक वजीर ने कहा कि मुल्क में 4 बिलियन से ज्यादा ज़खायर नहीं, अस्पतालों में दवाई ना होने की वजह से सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सनतें और इंडस्ट्रियां सब बंद हो गईं। अवाम ने लोटों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हम पंजाब और KP असेंबली को मुल्की मफाद के लिए तहलील करने जा रहे हैं। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात में है। पाकिस्तानी अवाम आज़ादाना तरीके से अपनी हुकूमत मुंतखब करेंगे। नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत ही पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकाल सकती है। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराए, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस वक्त हालत यह है कि पूरी मुल्क की मईशत का पहिया जाम होकर रह गया है। इस वक्त हमने तो लोगों को कोविड के बावजूद लाखों नौकरियां दी। आपने सिर्फ 7.5 लाख आदमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बेरोजगार करके रख दिए और दिन ब दिन यह बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी की शक्ल देखनी है तो देखो इसी 25 किलोमीटर की अपनी हुकूमत के अंदर यहां से चंद कदम के फासले पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड है। सर, उस ग्राउंड में तो खेलों के मुकाबले होते थे। उस ग्राउंड में तो कौम के नौजवान अपना हुनर दिखाते थे। इनकी हुकूमत में
1600 कांस्टेबल की असामियों के लिए 30,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान भरा हुआ था वो स्टेडियम। ये हाल कर दिया है आपने इस मुल्क का। सूबे सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में 3 दिन के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद मरकजी कंट्रोल रूम से कल काम शुरू करेगा। सजाद काजमी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी सजाद काजमी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 15 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं दूसरे मरले के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक, और 3 अहम अजला हैं जिसमें कराची है, हैदराबाद और ठट्टा, इन तीनों अजला के दूसरे मरले के इंतखाबात। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और अब इस हवाले से मरकजी कंट्रोल रूम जो है वो सेक्रेटेरिएट में कायम कर दिया गया, जो कि 3 रोज़ तक कायम रहेगा और इस हवाले से इंतजाम करता रहेगा। कल से ये खिदमात देगा और इलेक्शन के दिन तक ये रात गए तक खिदमात देगा। इस हवाले से तमाम के तमाम जो सीनियर जो DG लॉ हैं और दीगर जो है मुतदार हैं वो यहाँ से निगरानी करेंगे, जबकि जो सेक्रेटरी हैं और स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल हैं उनको कराची जाने के जो है अहकाम दे दिए गए, वो वहाँ से निगरानी करेंगे। इस हवाले से तमाम के तमाम जो पोलिंग का अमल है और पोलिंग के हवाले से बैलेट पेपर्स हैं और पोलिंग का जितना भी मटेरियल है वो वहाँ पर पहुँचा दिया गया और पोलिंग से 1 रोज़ कबल ही जो है वो पोलिंग स्टेशन में जो है डिप्यूट कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सजाद काजमी अपडेट करने के लिए। खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई, अबूधाबी और बिजनेस कम्युनिटी के वफूद ने मुलाकातें की। ओवरसीज़ बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान में ज़र मुबादला और बरामदात बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश की, जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म ने पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करने की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म से UAE में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ कारोबारी शख्सियात की 12 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में मारूफ कारोबारी शख्सियत और हिमानी हर्बल्स के सरबरा मुस्तफ़ा हिमानी, इकबाल दाऊद, डॉक्टर कैसर अनीस, मुस्तफ़ा अल्ताफ, इमरान फारूक, जावेद मलिक और मारूफ बिजनेसमैन शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान आने और सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, बिजनेस कम्युनिटी अपना किरदार अदा करे और मुल्क की ज़र मुबादला और बरामदात बढ़ाने के लिए तजावीज़ दें। मारूफ कारोबारी शख्सियत मुस्तफ़ा हिमानी ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्तेमाल शुदा कपड़ों के कारोबार के मसाइल से आगाह करते हुए बताया कि इस कारोबार में 26 मिलियन की मार्केट है, मगर बदकिस्मती से गुज़िश्ता हुकूमत ने लाइसेंस बैन करने समेत इस कारोबार की राह में काफी पेचीदगियां पैदा की। उन्होंने इस कारोबार को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में शामिल करने की तजवीज़ दी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने सराहा। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को इंडस्ट्री लगाने के लिए बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की अपील भी की, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को इस्लामाबाद आकर मिलने और अपनी तजावीज़ पेश करने की दावत भी दी। पाकिस्तान ने काबुल में होने वाले हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्द दोनों ममालिक के लिए खतरा है। आलमी बरादरी और माली इदारों ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर मदद की है। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान का मजीद कहना था कि रवां हफ्ते पाकिस्तान ने जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। आलमी बरादरी और माली इदारों ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर मदद की। इमदाद मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खर्च की जाएगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने चैलेंज किया है कि मुल्क में गंदम की किल्लत नहीं। बताया जाए कहाँ गंदम की किल्लत है। गंदम और आटे की कमी का शोर गैर ज़रूरी तौर पर मचाया जा रहा है। हमें बताएं किस सूबे ने गंदम मांगी है और हमने नहीं दी। सूबों की रिलीज के एक एक दिन का डेटा वफाक के पास मौजूद है। गंदम शॉर्ट है, गंदम मिल नहीं रही, आटा नापैद हो रहा है, आटे की प्राइस जो है वो आसमान को छू रही है और वाकई छू रही थी और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। उसके बाद हम बारहा आप लोगों को जरिए भी ये गुजारिश करते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था कि हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। फ्रॉम डे 1 हमने इस चीज़ को भांप लिया था कि ये गंदम के वाफर ज़खायर, हालांकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है,
یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے، اور اس بات کو سب صوبائی حکومتوں کا، اور اس بات کو آپ سب لوگ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ صوبائی حکومت کا ہے، وفاقی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ ہم نے صرف غذائی اجناس کو یقینی بنانا ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رحیم یار خان میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ آٹا مہنگا ہونے کے باوجود کہیں بھی دستیاب نہیں۔ آٹے کے حصول کے لیے عوام کی قطاریں لگ گئیں۔ حسن رحمانی رپورٹ کریں گے۔ ضلع بھر میں آٹے کا بحران، پیسے ہاتھوں میں اٹھائے شہری آٹے کے حصول کے لیے مارے پھرنے پر مجبور ہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک صرف اس آٹے کی خاطر کہ یہاں پہ کھڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں ڈیوٹی سے بھی وہ باس ہمارے ناراض ہیں۔ یقین مارے میری 400 روپے دیہڑی ہے، میں سارا دن یہاں پہ کھڑا ہو کے چلا جاتا ہوں۔ شام کو مجھے جب دیہڑی ملتی ہے میں گھر سے تھوڑے پیسے اٹھا کے پھر جا کے آٹے کی بران سے آٹا لینے کے آتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں جی اب اتنی لین ہے، کھڑ کر کے مجھے آٹا نہیں ملتا۔ سرکاری آٹا 10 کلو کا تھیلا 650 جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1300 روپے ہونے کے باوجود کہیں بھی دستیاب نہیں، جس کے باعث مجبوراً شہری خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہیں۔ غریبوں کو تو ذلیل کر کے رکھ دیا، ہماری تو خیر ہے، یہاں عورتیں جو ہے نا ذلیل و خوار ہو کے جاتی ہیں یہاں پہ۔ ضلع بھر میں آٹے کی سنگین صورتحال پر محکمہ فوڈ اور انتظامیہ کی جانب سے آٹا سٹالز، آٹے کی گرا فروشی ہو یا فلور ملز کا کوٹا، کہیں بھی چیک اینڈ بیلنس دکھائی نہیں دے رہا۔ آٹا نہ ملنے پر شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے آٹے کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی ساجد حسین توری کہتے ہیں ای او بی آئی کم آمدن شہریوں کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ مقصد مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دینا ہے۔ لاکھوں افراد کو پینشن دی جا رہی ہے۔ صحافیوں کو بھی رجسٹرڈ کریں گے۔ بھی امپلائر ہے یا جتنی بھی انڈسٹری ہے یا ریسٹورنٹ ہے یا اسی طرح اسکول ہے، یونیورسٹیاں ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان سب کو ہم رجسٹر کریں۔ رجسٹریشن کے بعد جو ان کو تقریباً 6,50,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم پینشن دے رہے ہیں، بلکہ پر منتھ 4 بلین مطلب ہم پینشن پے کریں۔ جتنی بھی ہمارے ورکرز ہیں یا جتنی بھی ہمارے رجسٹریشن ہو چکے یا وہ لوگ ہیں، ان کے لیے ہم مطلب ہیلتھ فیسلٹیز لائیں، ایجوکیشن میں اچھا کام کریں، ہر سیکٹر میں ان کے لیے ہم مطلب ہے کہ ریلیف دے دیں، کیونکہ آپ وہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں مطلب اگر ایک بچہ جو ہے نا وہ KG سے لے کر مطلب ہے کہ PhD تک مفت پڑھے، اچھی بات ہے کہ او بی آئی مطلب کہ جرنلسٹ آ جائیں۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 49 پیسے تک اضافے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے ڈسکوز اور الیکٹرک کے ٹیرف یکساں کرنے کی وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ نیپرا کی جانب سے ایڈجسٹمنٹ اکتوبر، نومبر، دسمبر 2022 اور جنوری 2023 میں استعمال کیے گئے یونٹ پر چارج کی گئی ہے، جو کہ جنوری سے اپریل 2023 تک 4 ماہ میں وصول کی جائے گی۔ نیپرا نے ڈسکوز کے لیے مالی سال 2021-22 کی چوتھی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اوسط 3 روپے 30 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی تھی۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ 15 جنوری کو الیکشن کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سندھ اسمبلی کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری احتجاج ختم کر دیا گیا۔ سندھ اسمبلی روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ شاہد اعجاز براہ راست موجود ہیں۔ جی شاہد۔ جی بالکل، الیکشن 15 جنوری کو ہوں گے یا نہ ہوں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا، دھرنا دیا گیا تھا۔ اس وقت جو ہے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جو اس وقت جو ہے احتجاج ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک ذمہ دار بھی یہاں پر موجود ہے۔ آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کی بنیاد جو بیس تھی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ الیکشن کیے جائیں یا نہ کیے جائیں؟ ہم تو پچھلے 6 مہینے سے پوری تیاری میں ہیں، اور ہمارے قائد نے تو ہمیں پہلے ہی ہمارے سب کارکنوں کو اور ہمارے ٹائیگرز کو الرٹ کر دیا تھا کہ یہ الیکشن آپ لوگوں کو جیتنا ہے، اور اس کے لیے ہر محنت ہر کوشش کی ہے ہم نے، اور ہم پچھلے 6 مہینے سے اسٹرگل کر رہے ہیں اور الیکشن ہو۔ اور یہ سندھ گورنمنٹ اور ہماری جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ ان انتخابات الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا یہی کہنا تھا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ 15 جنوری کو ہی الیکشن کیے جائیں گے۔ اس وقت شرجیل نام میمن کی جانب سے بھی کہا گیا کہ 15 جنوری کو ہی الیکشن ہوں گے، الیکشن کینسل نہیں ہوں گے، کیونکہ گرما گرمی نظر آ رہی تھی۔ یہ سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج جو کیا گیا تھا وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے، اور یہاں کے جو روڈوں کو جو بحال کر دیا گیا ہے ٹریفک کے لیے۔ یہاں سے عام
तरफ ट्रैफिक की जो चलती हुई नजर आ रही है। बल्दियाती इलेक्शन जो है 15 जनवरी को ही किए जाएंगे। जी शुक्रिया शाहिद एजाज अपडेट करने के लिए। सैलाब मुतासरीन की दुखों का मुदावा ना हो सका। मुतासरीन सैलाब साथ मौसम में बेजारो मददगार खुले आसमान तले दाद रसी के मुंतजिर हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ आसिफ रजा आशिक की इस रिपोर्ट में। सैलाब गुजर जाने के बाद भी मुतासरीन के दुखों का मदावा ना हो सका। तकालीफ और परेशानी का सिलसिला हुनूस जारी है। सैलाबी पानी में घिरे ये मुतासरीन किसी दही इलाके के नहीं बल्कि नवाबशाह के पोश इलाके सोसाइटी से मुतसिल गुलशन आदम कॉलोनी के रिहायशी हैं, जो ताहाल अपनी मदद आपके तहत टाट, प्लास्टिक, घास फूस और फटी पुरानी रल्लियों से बनाई अधूरी झोंपड़ी में सर्दी के सर्द मौसम में और ठिठुरती रातों में अपने कम सिन बीमार बच्चों के हमरा, जिनके तन पर कपड़े नहीं, पैरों में चप्पलें नहीं, रहने पर मजबूर हैं और दाद रसी की दुहाई दे रहे हैं। अभी तंबू में बैठा हुए, मनारी झुपड़ी है बेकार, उसमें बैठा हूँ। कोई भी तस्वीर लिया, मोबाइल का नंबर लिया, को भी आदमी इधर लड़के नहीं आया तो मैं इसको दूँ या न दूँ। 2 महीना हो गया। वापस नहीं आए। दुखियारी माँ जिसने सैलाब में अपने एक बच्चे को पहले ही खो दिया, वही माँ अपने शीर ख्वार बीमार बच्चे को गोद में उठाई दुहाई देती इमदाद की मुंतजिर है। हमारा डेढ़ साल का बच्ची यहाँ सैलाब में फौत हो गया। हमारा बच्ची 1.5 साल का हो बच्ची ये सैलाब में कोई भी नहीं आया। जख्म ज़दा जिस्म, बीमार बच्चे और उजड़ी हुई झोंपड़ियों में बिखरा हुआ साजो सामान मुतासरीन के दुख दर्द में भरी अलमनाक दास्तान सुना रहा है। तो एक खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं और इनकी जो है हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारी दाद रसी की जाए, हमें तिब्बी इमदाद दी जाए और हमें इस सर्द मौसम में जो है हमारे बच्चों को जो है गर्म मलबूसात दिए जाएँ। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, नवाबशाह। हरे नोट को फिर पर्न लग गए, रुपया फिर तगड़ा होने लगा। डॉलर की कीमत में फिर इजाफा हो गया। अमरीकी नोट इंटरबैंक मार्केट में 11 पैसे मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी आ गई। हरे नोट की फुर्तियां फिर ऐसी पलटी खाई कि रुपए के नसीब में आई खाई। इंटर मार्केट में फिर अमरीकी नोट्स ने अपने दाम ऐसे बढ़ाए कि रुपए के होश ठिकाने आए। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफे से रुपया मजीद जवाल पजीर हो गया। गुज़श्ता रोज इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 228 रुपए 14 पैसे का हो गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अशारिये भी घटने लगे। कारोबार के आगाज से ही ऐसा मनफी रुझान आया कि पॉइंट्स तेजी से गिरते ही चले गए। PSX के 100 इंडेक्स में मंदी का रुझान देखते हुए सरमायाकार भी पीछे हटने लगे। एक के बाद एक बहरान सर उठाने लगा। 2 वक्त की रोटी की फिक्र खत्म हुई नहीं कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का खदशा सर पर तलवार बनकर लटकने लगा। बैंकों की जानिब से LCs ना खुलने के बायस अद्वियात का खाम माल दरामद करने में अद्वियात साज कंपनियों को मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी सुकाम के मुताबिक उनके पास अद्वियात की तैयारी का सिर्फ 10 रोज का खाम माल बाकी रह गया है। अगर हुकूमत ने तवज्जो ना की तो मुल्क भर में अद्वियात का बहरान पैदा हो सकता है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।